Today we'll start with question number 8. Question number 8 from exercise 1.2. So question number 8 is, let A and B two given sets. We have to prove that function f from A cross B to B cross A. This function is such that f of AB is equal to BA, order pair BA. So we have to prove that this function is bijective, है ना? So that this given function is bijective. हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है. डन. सो व्हाट इज बाइजेक्टिव फंक्शन? अभी जब हम इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव की बात कर रहे थे, इंजेक्टिव फंक्शन मीन्स फंक्शन इज वन फंक्शन. Surjective function means function is on to function, and if function is both on one and on two, then function is known as bijective function. So here we have to prove this given function is on one and on two. Done. और यहाँ पर देखो डोमेन एंड कोडोमेन में कुछ अलग तरह से दिया हुआ है और फंक्शन भी कुछ अलग तरह से डिफाइन किया हुआ है. तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, है ना? तो एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम एग्जाम्पल लेके एक सोल्व करेंगे. सो लेट्स से two given set A and B. So element of set A are suppose 1, 2, 3, and set B, suppose set B is 4, 5. Done. जैसे हमने दो सेट अज्यूम कर लिए. So here domain is A cross B. Domain of function. What is the domain of function? It's a A cross B. Cartesian cross product सबको आता है. It's a 1, 4, 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5. उसके बाद 3, 4, 3, 5, 3, 4, 3, 5, है ना? ये हमारा डोमेन हो गया A क्रॉस B. Now what is the codomain of this function? This is domain and this is codomain. Codomain is B cross A, है ना? Codomain of this given function is B cross A. So codomain is B क्रॉस ए. चलो B क्रॉस ए कैसे करेंगे? जितने भी ऑर्डर पेयर है उसको रिवर्स कर देंगे. तो ये हो गया 4, 1, 4, 1, 4, 2, 4, 3, उसके बाद 5, 5, 1, 5, 2, 5, 2 and 5, 3. Done. This is our codomain B cross A. So one function is given from domain to codomain. So these are the elements of domain. These are the elements of codomain. Now mapping diagram ड्रॉ करेंगे. Mapping diagram. So mapping diagram, we require one domain. Let's say this is domain and this is codomain. Done. So here function is from A cross B. So this is our A cross B to B cross A, and this is function f. So which are the elements of this domain? Elements of domain are, ना ये रहा order pair है 1, 4, 1, 4, 1, 5, है ना? ये सारे लिख रहा हूँ. 2, 4, 2, 4, 2, 5, 3, 4 and 3, 5. These are the elements of domain. Codomain B cross A. Elements are 4, 1, 4, 2, 4, 3, 5, 1, 5, 2 and 5, 3. Done. This is given. ये दिया हुआ था. Done. प्रूव क्या करना है? We have to prove this given function is bijective. Bijective के लिए क्या प्रूव करना होता है? Function is 1, 1 and function is on 2. ये दोनों चीज आपको दिखानी है. So what is 1, 1 function? A function is said to be a 1, 1 function if all the elements in domain has their images unique and distinct image in its codomain. What is the function? Function के अंदर ऐसा बोला हुआ है कि अगर हम ऑर्डर पेयर ए बी लेंगे तो उसकी इमेज क्या मिलेगी? वो ऑर्डर पेयर रिवर्स हो जाएगी. देखो फंक्शन इज ए बी, तो क्या हमें देगा? वो इसकी रिवर्स ऑर्डर पेयर देगा. तो ए बी डालेंगे तो बी ए देगा. तो 1, 4 डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 4, 1. तो 1, 4 की इमेज 4, 1 है. देखो 1, 5 की इमेज 5, 1.
2 4 की इमेज 4 2, 2 5 की इमेज रिवर्स 5 2, 3 4 की इमेज रिवर्स 4 3, and 3 5 की इमेज रिवर्स 5 3. So here each and every element in its domain has unique and distinct image in its codomain. Hence our function is one function. Our function is one function. Now अभी prove करना है onto. What is the definition of onto? A function is said to be onto function if all the elements of codomain are occupied. Another statement: all the elements in a codomain has their pre-image in domain. देखो 4 1 की प्री इमेज क्या आएगी, 4 1 4 2 की प्री इमेज 2 4, तो सारे एलिमेंट की कुछ ना कुछ प्री इमेज हो रही है. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर ऑक्यूपाइड, सारे एलिमेंट की प्री इमेज निकल के आ रही है. हेंस दिस फंक्शन इज onto. So given function from a cross b to b cross a is 1 1 and onto, and hence we can say given function is bijective function. Clear students? So now you can pause this video and note it down. Now question number 9. So ninth question, very good question. We are given one function f of n. Function f of n is given, and here definition of function is divided into two parts. So f of n will give us n plus 1 by 2 when n is odd. जब n की वैल्यू ओड होगी, है ना, ये जो वैल्यू हम इनपुट में डाल रहे हैं डोमेन से, वो n जब ओड होगा तो फंक्शन हमें n प्लस 1 करके डिवाइड बाय 2 करके आंसर देगा. और फंक्शन अगर हमारा n इवन होगा तो उसको 2 से डिवाइड करेगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. डन. सो हियर फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम n to n. स्टेट whether the function is bijective or not. चेक करना है कि भाई ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है. चेक whether the function is bijective or not, and we have to justify our answer. And function is given from n to n. Function is from n to n. Done. So what is the requirement for bijective function? A function is said to be a bijective function if it is 1 1 and onto. अगर 1 1 भी नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा. अगर onto नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, है ना. 1 1 है लेकिन onto नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है. 1 1 नहीं है लेकिन onto है फिर भी बाइजेक्टिव नहीं है. बाइजेक्टिव के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? फंक्शन on 1 and 1 2 दोनों होना चाहिए. डन. सो वी हैव टू शो whether this is bijective or not. फंक्शन समझ में आ गया, है ना. फंक्शन इज फ्रॉम n to n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर. तो पहले मैपिंग डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे ना नेचुरल नंबर, तो एकदम इजी हो जाएगा. तो चलो मैपिंग, उसके बाद मैथमेटिकली कुछ देखते हैं. किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए, है ना, जैसे किसी भी इंसान को समझने के लिए उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है, तो इंसान को अच्छी तरह से समझ सकते हैं. वैसी तरह अगर किसी क्वेश्चन को आपको समझना है तो क्वेश्चन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो. तो दिस इज नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना. टाइम स्पेंड, थोड़ा टाइम निकालो क्वेश्चन के साथ, फटाफट नहीं करो. सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इट्स 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट. थोड़े और ज्यादा लिखते हैं 5 6 7. चलो ये हो गया. अगेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर और कोडोमेन इज, so 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट. नाउ व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन की डेफिनेशन रीड करो. फंक्शन इज f ऑफ n, है ना. ये जो नेचुरल नंबर n है वो कहाँ से ले रहे हैं? वो ले रहे हैं हम यहाँ से, डोमेन से. और फंक्शन हमें आउटपुट में क्या दे रहा है? f ऑफ n. ये आउटपुट आ रहा है. तो n यहाँ से सपोज हमने 1 ले लिया, 1. सो व्हाट इज 1? 1 इज ओड और इवन. सो 1 इज ओड, तो फंक्शन कौन सी डेफिनेशन रन करेगा? ये वाली. सो 1 प्लस 1 करेगा डिवाइड बाय 2 करेगा, तो 1 प्लस 1 2 बाई 2, तो 2 बाई 2 1, तो 1 की इमेज 1 आ गई. नाउ अगर हम 2 डालेंगे 2, तो क्या होगा? तो 2 कौन सा नंबर है? इवन नंबर. तो फंक्शन ये वाली डेफिनेशन रन करेगा. तो 2 इवन नंबर है तो 2 को 2 से डिवाइड करेगा तो 1 मिलेगा, ये 1 मिलेगा. चलो आ गया समझ में? क्या हुआ? ये दो एलिमेंट डोमेन के अंदर ऐसे जिसकी यूनिक इमेज तो है लेकिन डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है ना. एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं आ रही है, एक की सिर्फ एक ही इमेज है, दो की भी सिर्फ एक ही इमेज है, लेकिन दोनों की सिर्फ एक ही इमेज है. So this is not one function. This is not one function. It is many to one function, है ना. Not one function. अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो क्या हम उसको बाइजेक्टिव बोलेंगे?
So this function is not bijective function. डन। तो ये 1 1 से हो गया। अभी आपको चेक करना है कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या होगा देखो, सपोज 3 ले लिया, सो 3 इज ऑड नंबर। ऑड नंबर तो 3 + 1 4/2, तो 2 आएगा। तो 3 की इमेज 2। उसके बाद 4 लेते हैं, तो 4 इज इवन नंबर, तो इवन नंबर के लिए 4/2, तो 2 होगा, तो ये आएगा, है ना। तो 5 के लिए ये आएगा, 6 के लिए ये आएगा। तो ऐसे ऐसे करके जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि सारे एलिमेंट है ना यहाँ पर ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, है ना। सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, सारे एलिमेंट की एक प्री इमेज निकल के आ रही है। तो ये ऑन टू फंक्शन तो है, बट दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। अगर 1 1 नहीं है तो दिस इज नॉट बाइजेक्टिव। डन। तो यहाँ पर मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, सो लेट्स से फॉर 1 1 फंक्शन, है ना, इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे। तो दो एलिमेंट लिए हमने, कौन से, ये वाले। तो सपोज मैंने बोल दिया n1 = 1 एंड n2 = 2, है ना। ज्यादातर हमारा फंक्शन f ऑफ x था, तो x1 x2 ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर f ऑफ n है तो n1 n2 लेंगे। सो इफ f of n1 = f of n2, सपोज दो इमेज इक्वल आ गई, so what is f of n1, n1 is 1, so f of 1 = what is f of n2, n2 is 2. Now implies f of 1 is odd, तो डेफिनेशन आएगी 1 + 1/2, तो आंसर मिलेगा 1 1। f of 2 is even, तो आंसर मिलेगा 1, है ना। तो देखो इमेजेस इक्वल आ रही है ना। Here f of n1 = f of n2, but n1 and n2 क्या है हमारा, डिफरेंट है। सो n1 is not equal to n2। n1 और n2 की वैल्यू डिफरेंट है, टू डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम इमेज आ रही है। वी आर गेटिंग टू same images for two different elements in domain, and hence we can say this function is not 1 1 function। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है, hence this function is not bijective, this function is not bijective function। क्लियर, आगे कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन को बाइजेक्टिव नहीं है ऐसा प्रूव कर सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स, नाउ अगेन pause this video and note it down। Question number 10 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, इंपॉर्टेंट, टिक करके रखो। क्वेश्चन नंबर 10, अगर एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन लेना है तो ये लेंगे एग्जाम में। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट वी आर गिवन। सो फंक्शन इज, देखो पहले तो क्या दिया हुआ है, लेट a = 1 सेट इज गिवन। सेट a इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स -3। सारे रियल नंबर में से 3 के साथ कुछ पंगा हो गया, उसको निकाल दिया। सेट b इज ऑल्सो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और b का पंगा हो गया 1 से, 1 को रिमूव कर दिया। डन। टू सेट्स आर गिवन a एंड b, डिफाइन एज ऑल रियल नंबर्स -3, 3 को इंक्लूड नहीं करना है। सेट b ऑल रियल नंबर्स -1, 1 को इंक्लूड नहीं करना है। फंक्शन इज f फ्रॉम a to b। डन। सो दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन ऑफ फंक्शन। Now which is defined as, definition of function is given, function f of x, definition of function is x minus 2 upon x minus 3. So here we have to check whether this function is 1 1 and 1 2 and justify our answer, whether this is 1 1 and 1 2 चेक करना है कि है कि नहीं है ना। तो देखो मैपिंग करेंगे तो ये तो फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैपिंग करेंगे तो डायरेक्ट नहीं पता चलेगा कि क्या होने वाला है, तो इसको मैथमेटिकली करना पड़ेगा, है ना। तो मैथमेटिकली कैसे करते हैं देखो, अगर आपके पास टाइम है तो आप मैपिंग से कर सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन, फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, और यहाँ पर ए में से 3 को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि ए क्या होता है, एक्स के सारे जो एक्स का जो सेट होता है वो सारी वैल्यू एक्स कहाँ से लेते हैं, हम ए से लेते हैं। अगर यहाँ पर एक्स हम 3 ले लेंगे, एक्स की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, नॉट डिफाइन होगा। तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा जब एक्स की वैल्यू 3 होगी। तो ये डोमेन में से 3 निकाल दिया, और एक को डोमेन है ना, बी को डोमेन में से 1 क्यों निकाला वो फ्यूचर में पता चलेगा। ये समझ में आ गया कि 3 माइनस क्यों किया, 1 माइनस क्यों किया, उसकी कहानी बाद में देखते हैं। तो चलो इसको हमें 1 1 है कि नहीं वो चेक करना है। तो 1 1 है कि नहीं वो चेक करने के लिए फॉर 1 1 फंक्शन हम क्या करेंगे,
ये जो सेट ए है, सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट लेंगे. सो लेट्स से 2 एलिमेंट्स x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन. डोमेन के अंदर से 2 एलिमेंट ले लिए. उसके बाद हम अज्यूम करेंगे क्या कि ये 2 एलिमेंट के लिए हमारी इमेजेस इक्वल है. f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2. 2 इमेज इक्वल है तो फंक्शन 1 कब होगा, जब 2 एलिमेंट भी इक्वल होंगे. सो लेट्स ट्राई टू चेक इट. f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2. सो f ऑफ x1 x है तो क्या होगा, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 है, तो x1 करेंगे तो क्या आएगा, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू f ऑफ x2 क्या होगा, तो f ऑफ x2 यहाँ से x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सिंप्लीफाइड करो. सिंप्लीफाइड वर्जन होगा हमारा x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इक्वल टू ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा x1 माइनस 3 x2 माइनस 2. चलो एक्सपांशन करो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल विद बायनोमियल 8 स्टैंडर्ड. x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू यहाँ पर x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6. देखो क्या क्या कट हो रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस 6 कट हो गया, x1 x2 कट हो गया, माइनस 3x1 को सामने भेज दो और माइनस 3x2 को इस साइड ले लो, तो ये हो गया 3x2 माइनस 2x2 इक्वल टू ये माइनस 3x1 सामने, तो 3x1 माइनस 2x1, 3 माइनस 2 1 x2 इक्वल टू x1. क्लियर. सो फॉर दिस 2 इक्वल इमेजेस है ना, ये कब होगी, व्हेन 2 एलिमेंट्स आर इक्वल एंड हेंस वी कैन से आवर फंक्शन इज 1 फंक्शन. है ना, थोड़ा घोष पोच हो गया इधर, लेकिन आप इसको इजीली देख सकते हो. सो नाउ आवर फंक्शन इज 1 फंक्शन. क्लियर स्टूडेंट्स. चलो अभी ऑन टू की बारी है ना. ऑन टू इसके पहले हमने एक बार देखा था, वी आर राइटिंग x इन टर्म्स ऑफ y, तो फिर से वही करना है यहाँ पर. सो नाउ फॉर ऑन टू फंक्शन और गिवन फंक्शन इज है ना f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3. लेट अस से दिस इज इक्वल टू y एंड दिस y बिलोंग्स टू सेट ऑफ कोडोमेन. है ना, कोडोमेन में से हमने एक y ले लिया. अभी हम चेक करेंगे कि क्या y की सारी वैल्यू के लिए कुछ हमें प्री इमेजेस हमारे डोमेन के अंदर मिल रही है कि नहीं मिल रही है. तो क्या करेंगे, राइटिंग x इन टर्म्स ऑफ y, है ना, x इन टर्म्स ऑफ y. x को y के टर्म में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे देखो, तो इसको लिखने के लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सो इट्स x माइनस 2 इक्वल टू डिनोमिनेटर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो y इंटू x माइनस 3. देयरफॉर x माइनस 2 इक्वल टू दिस वन इज xy माइनस 3y. सारी x वाली टर्म को एक साइड लेंगे तो यहाँ पर x कॉमन आएगा, है ना, x कॉमन, तो ये हो गया 1, ये माइनस y इक्वल टू ये माइनस 2 को सामने भेजेंगे, ये हो गया 2 माइनस 3y. अभी x आ गया, इसको डिनोमिनेटर में ले ले, तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y. So this is our x in terms of y. This is x in terms of y and this y belongs to set B. है ना. तो देखो दूसरी कहानी, मैंने बोला था कि ये 1 रिमूव क्यों किया, क्योंकि सपोज यहाँ पर हम y की वैल्यू 1 ले ले, तो x हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा. y क्या है हमारा, y रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन कोडोमेन. तो कोडोमेन के अंदर सारे एलिमेंट है, लेकिन y की वैल्यू y इज नॉट इक्वल टू 1. y की सिर्फ 1 वैल्यू के लिए हमें डोमेन के अंदर कोई x नहीं मिल रहा है, अदरवाइज y की सारी वैल्यू के लिए हमें कुछ ना कुछ x मिल रहा है. दैट मींस y की सारी वैल्यू के लिए हमें कुछ ना कुछ प्री इमेजेस मिल रही है ना. वो डोमेन के सारे एलिमेंट के लिए हमें डोमेन में कुछ ना कुछ प्री इमेजेस मिल रही है, लेकिन सिर्फ y इक्वल टू 1 के लिए ये इमेज नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर हमने को डोमेन में से 1 रिमूव कर दिया. तो केस सॉल्व हो गया, डन. तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, सो हियर इसको प्रूव करने के लिए स्टार्ट करेंगे f ऑफ x. सो अवर f ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3. कैसे पता चलेगा कि y की सारी वैल्यू के लिए कुछ वैल्यू x मिल रही है. सो नाउ रिप्लेस दिस x विद दिस वन. सो f ऑफ
x is nothing but the 2 minus 3y, 2 minus 3y upon 1 minus y. This is equal to, देखो, if you are having f of x equal to, if of x होगा तो x minus 2 upon x minus 3 करेंगे, लेकिन x की प्लेस पर ये वाली वैल्यू है तो इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इट्स 2 minus 3y upon 1 minus y minus 2 upon x minus 3, it's 2 minus 3y upon 1 minus y minus 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इट्स 2 minus 3y minus 2 plus 2y अपॉन 1 minus y को कैंसिल कर देंगे, इट्स 2 minus 3y minus 3 plus 3y, सिंप्लीफाइड, प्लस 2 minus 2 कट, minus 3y minus y minus 3y plus 2y, so it's a minus y अपॉन ये कट हो गया minus 1, so this is equal to y. So f of 2 minus 3y upon 1 minus y equal to y. डन. सो f of x की कुछ भी वैल्यू लेंगे तो हमें x मिलेगा, तो y की वैल्यू के लिए वो मिल रहा है. सो नाउ वी कैन से और फंक्शन f of x is onto function. Done. So this is how mathematically we can prove any function is a onto function. So this function from a to b is one function and it is onto function, and hence we can say this given function is 1 and onto. It is bijective function. Clear students? So very good question is there. इसको अच्छी तरह से आप नोट डाउन करेंगे और याद रखेंगे. Done. Now question number 11 MCQ. So question number 11 says that function f from r to r, function f from r to r defined as, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन किए, स्क्वायर वाला किया, क्यूब वाला किया और x⁴ वाला बाकी था वो भी आ गया. सो दिस फंक्शन इज, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. सो फंक्शन इज, कौन सा फंक्शन है चेक करें, 1 1 है कि नहीं, 1 2 है कि नहीं. तो क्या होगा देखो इसके अंदर. सो लेट्स से, है ना, रियल नंबर टू रियल नंबर है. सो लेट्स से 2 एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स टू दिस रियल नंबर r. सो हियर f of x1 इक्वल टू f of x2, क्या दो इमेज इक्वल है, तो दोनों एलिमेंट इक्वल है, तो x1 रेस टू 4 इक्वल टू x2 रेस टू 4, है ना, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x1 इक्वल टू प्लस और माइनस x2 आ जाएगा. हेंस वी कैन से x1 इज नॉट इक्वल टू x2. तो दो इमेज इक्वल आ गई लेकिन दोनों एलिमेंट डिफरेंट है, उसका मतलब हुआ दो डिफरेंट एनिमल के लिए सेम इमेज आ रही है ना, मेनी टू वन फंक्शन है. हेंस दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन. डन. 1 2 के लिए क्या होगा, 1 2 के लिए देख लो, है ना, f of x इक्वल टू x रेस टू 4 इक्वल टू y. सो x विल बी प्लस और माइनस फोर्थ रूट ऑफ y. देखो दो कंडीशन आ गई प्लस और माइनस y के लिए, है ना, एंड हेंस दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज नॉट ऑन टू. अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैपिंग देखो, मैपिंग के अंदर, है ना, ये फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x रेस टू 4 दे रहा है, तो ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर के अंदर -3 -2 -1 0.5 सब कुछ आएगा, उसके बाद 1 2 3 3.5 सब आएगा. तो किसी भी नेगेटिव नंबर का 4 पावर करेंगे तो यहाँ पर 4 डोमेन में ये से -3 -2 -1 नेगेटिव नंबर होंगे. तो क्या किसी भी नेगेटिव नंबर का 4 पावर, है ना, नेगेटिव आ सकता है? नहीं. तो सारे नेगेटिव नंबर छूट रहे हैं. तो हियर वी कैन से -2 बिलोंग्स टू दिस r इन कोडोमेन. There is not any x belongs to r in domain under the function f of x equal to x raised to 4. ये सारी बात ये बता रहा है ना. For x belongs to r, y के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसकी प्री इमेज हो रही हो. Hence we can say this is not onto. तो ये हो गया neither 1 1 nor onto. कौन सा ऑप्शन है चेक करो. Is not 1 1 and not onto. डी आंसर. डन. आंसर आएगा डी, है ना, डी है, डी. ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 12 के अंदर दिया हुआ है
function f of x equal to 3x, function f from R to R, function f from R to R, and function f of x equal to 3x. 3x डन. चूज द करेक्ट आंसर. चलो ये 1 1 है कि नहीं, तो रियल नंबर टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर डालेंगे आपको आउटपुट मिलेगा, तो ये 1 1 है. और सारे एलिमेंट यहाँ पर रियल नंबर के लिए आपको प्री इमेज भी मिलेगी, तो ये 1 2 भी है ना. तो ये 1 1 भी हो गया एंड ये 1 2 भी हो गया. सो दिस इज 1 1 एंड 1 2 है ना. मैपिंग से देख लो फटाफट. ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, ये -3 -2 -1 0 0 1 1.5 2 3 करो. -3 -2 -1 0 1 1.5 2 3 3.5 इन्फिनिट. देखो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू लेंगे हम, सपोज -1 ले लिया, सो ये क्या आंसर देगा. -1 के लिए -3 इमेज करेगा, 0 के लिए 0 देगा, 1 के लिए 1 इंटू 3 3 देगा. तो जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट की एक यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगी. सो हियर दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन डन. और देखो यहाँ पर रियल नंबर है, तो रियल नंबर में आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, तो सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड होने वाले हैं. -2 कब आएगा, तो 2 लेंगे तो -2 आएगा, है ना. -2 लेंगे तो 2 आएगा. तो आप देख सकते हो कि सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड भी होने वाले हैं, एंड हेंस दिस इज ऑन टू. सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड भी होने वाले हैं, हेंस दिस इज ऑन टू. सो दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू. मैथमेटिकली देखना है तो देखो x1 एंड x2 बिलोंग टू R ले ले, तो क्या होगा, f of x1 इक्वल टू f of x2 होगा. f of x1 इज 3x1 इक्वल टू 3x2. तो ये प्रूव हो गया कि x1 इक्वल टू x2, हेंस और फंक्शन f of x इज 1 1. तो ये 1 1 आ गया. दो इमेज इक्वल है तो दो एलिमेंट भी इक्वल है, सो गिवन फंक्शन इज 1 1 हो गया. ऑन टू के लिए करना हो तो मैथमेटिकली देखो वो भी ट्राई कर लेते हैं. फॉर ऑन टू और फंक्शन इज f of x इक्वल टू 3x, 3x को लेंगे y और y बिलोंग तो हमारा होगा कोडोमेन R. सो 3x इक्वल टू y, तो क्या हम लिख पाएंगे x इक्वल टू y बाई 3, है ना. x इक्वल टू y बाई 3. तो देखो y की कुछ ना कुछ इमेज है ना प्री इमेज डोमेन के अंदर होगी. कैसे होगी, तो f of x हमारा फंक्शन है 3x. सो f of रिप्लेसिंग x विथ y बाई 3, y बाई 3 से रिप्लेस करेंगे तो 3 ऑफ y बाई 3, ये 3 से 3 कट हो गया. सो f of y बाई 3 इक्वल टू y, है ना. तो y की कुछ ना कुछ प्री इमेज हमें डोमेन में मिल रही है, एंड हेंस वी कैन से और फंक्शन f of x is onto function. Done. So given function is 1 1 function and it is onto function. Clear students? So this is your exercise number 1.2, which is based on types of function. Done. So now you can pause this video and note it down.